gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. In this video, I'm gonna tell you how to do heavy squats and deadlifts without wearing a belt, एंड जिससे आपको इंजरीज के चांसेस भी बहुत ही कम रहेंगे। सो क्या आपको पता है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी और फोर्स प्रोडक्शन कहाँ से होती है जब हम वेट लिफ्ट करते हैं? वो होती है हमारे हिप्स और हमारी कोर से। एंड देयर आर सम एक्सरसाइजेस जो हमारी हेल्प करेंगी टू मेक देम स्ट्रॉन्ग। सो सबसे पहले बात करते हैं हिप एक्सरसाइजेस के बारे में। हम इसमें करेंगे 90-90 और पिजन स्ट्रेच। अब मैं आपको वॉइस ओवर करके समझाता हूँ। हाँ जी, तो पहली एक्सरसाइज का नाम है 90-90। इसके दो वर्जन है, एक तो बेसिक लेवल, एक है एडवांस लेवल। बेसिक लेवल आपने अभी देखा था जिसमें मैंने अपनी जो हील है वो एलिवेट नहीं की थी, ये वाला। और दूसरा है जिसमें हम पीछे से पैर को उठाते हैं। And this is a great exercise for improving your hip mobility, and अगर आपको लोअर बैक पेन है वो भी इससे अलिविएट हो जाएगा। एंड जब आप इसे करोगे और आपको हिप्स में थोड़ा सा क्रैम्प फील हो रहा है, उससे आपको डरना नहीं है। क्या हो रहा है बेसिकली आपका जो CNS है, इट इज़ वेकिंग अप एंड इट इज़ एक्टिवेटिंग द हिप मसल। एंड 90-90 स्ट्रेच को आपको दोनों साइड 3 बार करना है, 3 सेट लगाने हैं एंड तीनों में 10 सेकंड होल्ड करना है। सो ये था 90-90। अब है दूसरा पिजन स्ट्रेच। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, आपको पोजीशन लेनी है एंड उसे अराउंड 20 to 30 सेकंड्स होल्ड करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोर एक्सरसाइजेस के बारे में। I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase the bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 कोर की एक्सरसाइजेस बताने से पहले आई वांट टू टीच यू
हाउ टू ब्रेस द कोर, क्योंकि कोर ब्रेसिंग बहुत ही ज़रूरी है, ना सिर्फ डेडलिफ्ट और स्क्वाट करने के लिए, बट ऑल्सो टू डू द एक्सरसाइजेस जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो बेली ब्रीदिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी ये 2 फिंगर्स लेनी है, दोनों हाथों की, एंड उन्हें अपनी बेली के साइड में रखना है, एंड देन यू हैव टू टेक अ डीप ब्रेथ। एंड जैसे कि आपने देखा, अगर आप ठीक से कोर ब्रेस कर रहे हो, आपकी जो फिंगर्स है वो बाहर आएंगे, एंड अगर आप कोर ब्रेसिंग की जगह चेस्ट में ब्रेथ होल्ड करोगे तो फिंगर्स बाहर नहीं आएगी। एग्जाम्पल देखो, कोर ब्रेसिंग अलग होती है, चेस्ट में ब्रेथ होल्ड करना अलग होता है। सो आपको कोर ब्रेसिंग करनी है, अपनी ये 2 फिंगर्स यहाँ पे रख के, एंड उस ब्रेथ को होल्ड करके छोटी छोटी ब्रेथ लेनी है, अदरवाइज यू विल पास आउट एंड आपको डिजीनेस हो सकती है। स्टार्टिंग में ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे दिन में 2-3 बार, यू विल गेट बेटर एट इट। अब बात करते हैं कोर की एक्सरसाइजेस के बारे में। कोर की एक्सरसाइज में हम करेंगे कर्ल अप और बर्ड डॉग। सो आपको कर्ल अप में क्या करना है, हमारी स्पाइन में एक नेचुरल कर्व होता है, वहाँ पे आपको अपना हैंड रखना है, एंड देन अपनी जो अपर बैक है उसे, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, बेंड करना है, एंड देन आपको अपनी कोर ब्रेस करनी है, जैसे हमने कोर ब्रेसिंग में सीखा था। एक डीप ब्रेथ लेनी है एंड उसे होल्ड करना है 10 सेकंड तक, एंड बीच में छोटी छोटी ब्रेथ भी लेनी है। इसके आपको 3 सेट लगाने हैं, एंड तीनों में 10 सेकंड होल्ड करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बर्ड डॉग। सो बर्ड डॉग आप जैसे वीडियो में देख रहे हो, आपको ऐसे करना है। काफ़ी लोग बर्ड डॉग में अपना जो लेग है उसे ऊपर को उठाते हैं, उससे क्या होता है, हमारी जो स्पाइन है वो एक्सटेंड हो जाती है, बट हमें इसमें अपनी स्पाइन को न्यूट्रल रखना है, तो अपना लेग नीचे की साइड रखना है, ऐसे जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, एंड जो आपकी स्पाइन है वो न्यूट्रल रहेगी। देन आपको एक लंबी सांस लेनी है एंड उसे 10 सेकंड तक होल्ड करना है, एंड इसमें आपको दोनों साइड 3 सेट लगाने हैं, एंड तीनों सेट में 10 सेकंड होल्ड करना है। एंड अगर आपको कभी बाई चांस लोअर बैक में इंजरी हो जाए, ये दोनों एक्सरसाइजेस आपकी हेल्प करेगी पेन को रिड्यूस करने में। तो अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स दूंगा जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। नंबर 1, आपको डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आप दोनों की टेक्निक सीख पाओ। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छी आपकी टेक्निक हो जाएगी। बट इसमें आपको हैवी नहीं लगाना है, क्योंकि आप अभी एक स्किल सीख रहे हो, तो बहुत ही लाइट वेट से हफ्ते में 3 बार प्रैक्टिस करना है। नंबर 2, जब भी बॉडी में कोई पेन या इन्फ्लेमेशन हो तो उस लिफ्ट को आपको बंद नहीं करना, बहुत ही लाइट वेट से लगाना है, क्योंकि अगर पेन और इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में आ रही है तो उसका एक रीज़न है कि कुछ गड़बड़ है। मैंने भी यही मिस्टेक की थी, मेरे राइट शोल्डर में काफ़ी टाइम से बहुत ही इन्फ्लेमेशन हो रही थी और पेन भी हो रहा था, एंड पिछले महीने आई वाज ट्राइंग टू हिट अ पीआर, एंड क्या हुआ, मेरी जो इंजरी है वो बढ़ गई। सो जो गलती मैंने की है वो मत करना। अगर बॉडी में पेन और इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाए तो वेट कम करना, एंड जब पेन और इन्फ्लेमेशन चला जाए तब आप रेगुलर वेट बढ़ा सकते हो। नंबर 3, आपको वॉल्यूम और इंटेंसिटी को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम और इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। वॉल्यूम क्या होता है, सेट्स इनटू रेप्स इनटू वेट, और इंटेंसिटी होती है जो आप वेट यूज़ करते हो। सो अगर आप हैवी लिफ्टर हो मेरी तरह, तो आपको अपनी वॉल्यूम कम रखनी पड़ेगी।
नहीं तो बॉडी पे स्ट्रेस पड़ेगा और इंजरीज़ के चांसेस बढ़ जाएँगे। एंड अगर मॉडरेट वेट लगाते हो तो आप अपनी वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। नंबर 4, यू हैव टू स्लीप फॉर 7 टू 8 आवर्स डेली, क्योंकि हमारी बॉडी जब हम सोते हैं तब वो रिकवर होती है। एंड अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड होंगे तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगी एंड आप अगले वर्कआउट में ना तो पुश कर पाएंगे, और अगर पुश करेंगे तो इंजरीज के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। सो अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना एंड कमेंट्स में आपके जो भी क्वेश्चंस है वो लिखना। मैं उनके आंसर देने की कोशिश करूँगा या फिर उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँगा। एंड अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते तो मैं यहाँ पे आईडी मेंशन कर दूँगा। प्लीज़ गो एंड फॉलो मी देयर। एंड मैं कोशिश करूँगा ऐसे ही व्लॉगिंग स्टाइल में और ज़्यादा वीडियोस अपलोड करने की, जो एंटरटेनिंग भी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी होगी। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।